Hello students, today we'll do one more sum related to cost sheet. This question also similar to the previous question that already I have given explanation. So try to understand everybody what is the difference the previous question and now this question. Okay, you will get the difference. What is the difference that you will get? See students, first of all see the question. ABC Limited manufactures one product. A summary of its activities for the year 2020 is given below. Right. Now, what are the informations given here? What are the informations given here? You try to understand. First of all, sales. What is given? Sales. Sales 80,000 units, 8 lakh rupees. Okay. Sales value given 8 lakh. Okay. Next, material inventory. Material inventory means raw material. Okay. Material inventory means that is the raw material. Material inventory date 1, that is 1/1/2020. That means this is called opening stock of raw material that you have done in the previous question, right? So this is the opening stock of raw material. The value given here, that is 40,000. Okay. Next, again material inventory given date 31st December 2021. The closing date material inventory given, that is the closing stock of raw material, that is 32,000 amount given. Okay. In the previous question, opening stock of raw material and closing stock of raw material both are given, right? Now, next point is work in progress. Work in progress date 1/1/2020. That means this is the opening stock of work in progress, right? The value given 55,000. Okay. Next, again work in progress given, but the date is 31st December 2020. That is the closing stock of work in progress 72,000, right? Next, finished goods. What is given? Finished goods given. The finished goods on 1/1/2020, right? 2020 given. Now, that is what? That is opening stock of finished goods, right? Opening stock of finished goods units given 16,000 and the value given 64,000. Okay. Next point, try to understand. Finished goods on 31st December 2020, that is the closing stock of finished goods, 34,000 units given, but value missing here, right? In the previous question, opening stock of finished goods value given, closing stock of finished goods value given, but in this question closing stock of finished goods value missing. अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू अगर क्वेश्चन में मिसिंग हो, देन यू हैव टू डू वर्किंग नोट. दैट यू रिमेंबर. सर कौन सा वर्किंग नोट? तो देखो स्टूडेंट्स, फिनिश गुड्स का वैल्यू जब जब मिसिंग होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट यूनिट्स प्रोड्यूस, कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया. ठीक है, तो यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो वैल्यू कैसे निकालना है सर? तो वैल्यू भी निकालने के लिए फॉर्मूला है. ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस को फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला है. ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट. ओके. नेक्स्ट what is given? Material purchases. Material purchases means what? Raw material purchases. Okay, raw material, that is purchase of raw material. The purchase of raw material also given 1,52,000.
क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था और इस क्वेश्चन में भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट द डिफरेंस इज दैट कि फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में था और इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मीन्स डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू गिवन 1,45,000। ओके, next point is manufacturing overhead. Manufacturing overhead means what? Factory overhead, or you can say works overhead, right? So manufacturing overhead is also known as factory overhead or works overhead, that also you remember. Okay, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन है। ओके, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू गिवन है, राइट? फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस वैल्यू हाउ मच गिवन? 50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस मीन्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वैल्यू गिवन था और इस क्वेश्चन में भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वैल्यू गिवन है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस वैल्यू हाउ मच गिवन? 40,000। तो जनरल एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट? एक कौन सा खर्चा है? तो देखो, जैसा फैक्ट्री का खर्चा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा था, कौन सा खर्चा बाकी रह गया? ऑफिस, है ना? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना? तो यही खर्चा है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस मतलब यहाँ में कौन सा खर्चा होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यही जनरल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो प्रिपेयर है व्हाट? कॉस्ट शीट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको फाइंड आउट करने के लिए? आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप लोगों को मालूम है कि किस तरह कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है, बेसिक आइडिया है आप लोगों को, है ना? वेरी सिंपल। बट क्वेश्चन अराइज हियर, इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिसिंग, इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट यूनिट्स प्रोड्यूस। ओके, कि किस तरह यूनिट्स प्रोड्यूस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां में देखो क्या लिखा है यहां में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स। आपका जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? ठीक है, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस, आपने कितना और यूनिट्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में। ठीक है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स में लेना है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी यूनिट्स में लेना है, वैल्यू नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है। तब जाके आपको मिल जाएगा कितने यूनिट्स आपने सेल किया। ठीक है ना? अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तो एक इक्वेशन बन गया है ना? नहीं, आप इस इक्वेशन को अगर यूज कर लेते हो तो आपको यूनिट्स प्रोड्यूस का वैल्यू मिल जाएगा। यूनिट्स प्रोड्यूस आपने कितना किया, ठीक है ना? तो एग्जांपल लाइक कि मान लो कि आपका एक जो है गारमेंट्स का फैक्ट्री है, मान लो आप वहाँ में टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि बिगिनिंग में आपका पास बना बनाया टी शर्ट था। ठीक है, बना बनाया टी शर्ट था। ठीक है, तो हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान लेते हैं हम कि आपका पास 15 टी शर्ट बना बनाया था। ठीक है, 15 टी शर्ट, ओके, 15 टी शर्ट आपका पास था पहले से बन के। इसका बाद प्लस क्या लिखा है हमें? यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, सपोज आपको पता नहीं है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, मान लेता है क्वेश्चन में मिसिंग है ना? माइनस क्या लिखा है हमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट्स में लिखना है। मतलब ईयर का एंड में
द गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अंडरस्टूड? तो ईयर का एंड में आपका पास कितना फिनिश गुड्स रह गया, ठीक है ना, ईयर का एंड में जितना रह गया सेल करने का बाद, जितना गुड्स आपका पास रह गया ईयर के एंड में, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम मान के चलता है कि मेरे पास जो था वो कितना था, सपोज 5 था, 5 टी शर्ट ईयर के एंड में रह गया, दोज आर रिमेन अनसोल्ड। ओके ओके, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है ना, नहीं इसको माइनस करना है, जस्ट वेट, इसको प्लस 15 टी शर्ट पहले से था बना बनाया, इसका पास आपका पास यूनिट्स प्रोड्यूस मिसिंग है, माइनस क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मान लेता है कि आपका पास 5 टी शर्ट और रह गया ईयर के एंड में, ठीक है, 5 टी शर्ट, ये सेल नहीं हुआ, मतलब आपने जितना भी यूनिट्स बनाया, जितना भी टी शर्ट बनाया, वहाँ में से ईयर के एंड में 5 टी शर्ट रह गया, इक्वल टू क्या लिखा है, यूनिट सोल्ड, है ना, यूनिट सोल्ड। तो अपने सपोज आपने 30 टी शर्ट सेल किया, कितना टी शर्ट, 30 टी शर्ट सेल किया। नाउ कैन यू से कि आपने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ये मैथमेटिक्स जैसा ही है ना, नहीं, तो आप क्या कर लोगे, सपोज हमें यूनिट्स प्रोड्यूस, है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस मान लेता है, एक्स मान लेता है, ठीक है। अभी क्या करना है, आप इसको एक काम कर लो, आप इसको जैसे ये हमें इक्वल टू 30 है ना, तो 30 है ना, ये हमें माइनस 5 टी शर्ट है, तो इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाओ तो +5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ में जो है 15 टी शर्ट, आप इसको लेफ्ट से राइट में ले जाओ तो -15 हो जाएगा, राइट, है ना। तो इक्वल टू क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, है ना, नहीं, तो 30 + 5 35, 35 से आप 15 को माइनस कर दो, 5 - 5 0, 3 - 1 2, ओ 20 आ रहा है, ये 20 टी शर्ट आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। आपने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 20 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह आपको यूनिट्स प्रोड्यूस का निकालना है, ठीक है। और अगर सपोज क्वेश्चन में सपोज यूनिट सोल्ड मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन का हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स मिसिंग है, तो इसका हेल्प से भी, इस इक्वेशन के हेल्प से भी आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस यूनिट्स प्रोड्यूस, नेक्स्ट स्टेप विल बी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि आपका पास जो आपने जो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है ना, नहीं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, है ना। अभी 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने, तो 20 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किया, ये इसको बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ, तो एग्जाम्पल लाइक हम मान के चलता है कि इसका खर्चा हुआ सपोज 200 रुपीज़, आपको 20 टी शर्ट प्रोड्यूस किया आपने, और 20 टी शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 200 रुपीज़ खर्चा हुआ। जो 200 रुपीज़ मैंने ऊपर में लिखा है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जो हम नीचे में जो 20 यूनिट्स लिखा है, ये क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस। तो आप बोल सकते हो कि एक टी शर्ट को बनाने के लिए आपका खर्चा कितना हुआ, 10 रुपीज़, राइट, 10 रुपीज़, है ना, नहीं, तो 10 रुपीज़ आपका खर्चा हुआ एक टी शर्ट बनाने में, इनटू क्या लिखा है यहाँ में, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम मान के चलता है कि ईयर का एंड में आपका पास कितना टी शर्ट रह गया, तो एग्जाम्पल लाइक 5 टी शर्ट रह गया, तो 10 5 50, राइट। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बस यही वर्किंग नोट आप लोगों को करना है। कब करना है, जब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू मिसिंग हो, तभी ये वर्किंग नोट करना है। आई थिंक एवरीबॉडी यू अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ विल प्रोसीड फॉर द सोल्यूशन। इट इज वेरी सिंपल and very easy, okay, तो try to understand. First of all particulars, ये हमें सॉल्यूशन लिखना है, और आपने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो तो कैलकुलेट करने का टाइम में पता चलेगा, है ना, नहीं, तो आप हमें यूनिट्स प्रोड्यूस लिख के ब्लैंक रख देना, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ में, ठीक है ना। आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू देके
आप यहाँ में ब्लैंक रख देना। इसके बाद आप फॉर्मेट बनाओ, पार्टिकुलर्स लिखो यहाँ में, फिर ये कॉलम यूनिट्स का है और यहाँ में टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैंने यूनिट्स का कुछ लिखा नहीं है, ये ब्लैंक रख दिया मैंने। ठीक है, इसका बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन इन द क्वेश्चन, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू 40,000, देन एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 1,52,000, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000, then you will get the value 1,60,000, that is called raw material consume। आपको raw material consume मिल गया। now you have to add what, direct labor and direct expenses। तो in the question direct wages given, direct labor direct wages same thing ना, तो इसको आप प्लस कर दो। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, बस रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड कर दो। दैट इज हाउ मच यू गॉट हेयर, 3,05,000। we are getting 3,05,000, right? This is called what, prime cost। okay, now next, after getting the value of prime cost, what you have to do, you have to add some other expenses। those expenses are known as factory overhead na, office and administration overhead, right, then selling and distribution overhead, right। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ था 1,08,000, राइट। इसका बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने का बाद अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो तो इसको ऐड लेस करना है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू दिया हुआ था, राइट। तो इसका फैक्ट्री ओवरहेड के साथ प्लस माइनस कर लो तो इसको मिलेगा 3 लाख कितना, 96,000। दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड व्हिच एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, जो क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ था वही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कितना है 40,000। ठीक है ना, तो इसको आप ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा, 4,36,000। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू मिल गया, राइट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू आपको मिल गया है ना। नेक्स्ट यू सी हियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज व्हाट, नेक्स्ट एक्सपेंसेस ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स भी दिया हुआ था और वैल्यू भी दिया हुआ था, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना है, 16,000 यूनिट्स और वैल्यू कितना, 64,000। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 34,000 यूनिट्स, बट वैल्यू नहीं था, है ना, नहीं, तो ये मिसिंग था। अभी इसको हम मिसिंग ही रखता है, ओके, मालूम नहीं है हमको, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब पता चलेगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का साथ आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडलेस करोगे तभी जाके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू मिलेगा, है ना, नहीं। लेकिन यहाँ में जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू है ही नहीं तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये भी मिसिंग है ना, इसको अभी ब्लैंक रख दो। नेक्स्ट एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस था तो 50,000, ये आप लिख दो, ठीक है ना। इसका बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू नहीं है, मिसिंग है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू भी क्या होगा, मिसिंग होगा, है ना, नहीं। इसके बाद आपको प्रॉफिट जोड़ना है ना, प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब आपका सेल्स होगा। तो क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू दिया हुआ था, सेल्स का यूनिट्स कितना था, 80,000 यूनिट्स और उसका वैल्यू था 8 लाख। तो आप यहाँ में 8 लाख लिख दो, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, आप अगर सेल्स से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो तो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सेल्स का वैल्यू मिसिंग है तो प्रॉफिट कैसे आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी मिसिंग है ना, नहीं। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो स्टूडेंट, यूनिट्स प्रोड्यूस, देखो मैंने वही इक्वेशन यूज कर रहा है यहाँ में, यूनिट्स सोल्ड प्लस यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वही इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ में, ठीक है। तो आपने कितना यूनिट सेल किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था
80,000 यूनिट्स, ये देखो ये वाला सेल्स 80,000 यूनिट्स है, यहाँ में लिख दिया, आपको यहाँ में यूनिट्स लिखना है। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना है 34,000, तो यहाँ में 34,000 लिखा। नेक्स्ट है माइनस करना है यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना है 16,000, तो यहाँ में 16,000 लिख दिया। तो कितना आया यूनिट्स प्रोड्यूस 98,000। इसका मतलब एग्जाम्पल लाइक आपने 98,000 टी शर्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ टी शर्ट का कि आपने 98,000 टी शर्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसा कैलकुलेट करना है ना। तो देखो वेरी सिंपल, राइट। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू आपको मिला था, है ना, नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ में दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है 4,36,000, 4,36,000, है ना, 4,36,000 मिला, राइट। तो 4,36,000 देखो यहाँ में 4,36,000 लिखा है ना, 4,36,000। ओके, नेक्स्ट यूनिट्स प्रोड्यूस, आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया 98,000, ये देखो यहाँ में कैलकुलेट किया हुआ है 98,000, ठीक है ना। इनटू व्हाट यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दिया हुआ था 34,000, है ना। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू कितना मिलेगा 1,51,265, 1,51,265 पॉइंट समथिंग डेसिमल समथिंग you will get, you just ignore it। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू मिल गया, है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू where in the format, right, in the format of cost sheet। तो देखो यहाँ में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू लिख दिया 1,51,265 लिख दिया, बस। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू एडलेस कर दो, तो आपको मिल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू 3,48,735, राइट। और इसका साथ आप ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज 50,000, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया 3,98,735, राइट। और सेल्स का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप सेल्स से क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दोगे, सेल से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। 8 लाख से आप माइनस कर दो 3,98,735 माइनस कर दो, तो 4,01,265 रुपीज़ यू विल गेट द प्रॉफिट, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ओके, है ना, आसान क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो था और अभी का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बट द डिफरेंस इज दैट व्हाट कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू गिवन था, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू गिवन नहीं है। जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का नहीं रहेगा, तब क्या करना है, सबसे पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया फाइंड आउट करो, इसका बाद आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कैलकुलेट करो, देन इजीली you will get the answer। तो in this way you have to prepare cost sheet। I think कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।